Hi, good evening, friends. Welcome back to my channel AAA Easy Trading and Investing with Man Thapa. So today we are going to discuss about a company called Zen Technologies. Zen Technologies order blocking stand at a 754 crore with a new anti-drone deals. Could this be your next long-term wealth creator? Let's discuss. A leader in defense simulators, Zen stock slips 25% in 3 months after a Q1 financial year 2026 profit drop. But defense spending could fuel the recovery also. In next 15 minutes, I will show why this stock could be a long-term wealth creator starting with its order value. Let's deep dive into how Zen Technologies makes the money. Founded in 1993, Zen Technologies design and manufacturing training simulators and anti-drone systems for defense forces. Simulations and trainings contribute 80% of revenue. Simulators for shooting, driving, and combat training used by army and police. Anti-drone system contribute 20% of revenue, which includes drones and counter-drones tech for surveillance and securities. They serve Indian militaries, export to 10 plus countries, focusing on virtual reality based trainings. Now you know what they do. Let's check their business pipeline. Zen order book in defense contract and project pipeline. As of July 2025, the order backlog is 754 crore, which is 0.7x of financial year 2025 sales, down from 1160 crore in June 2025 with new anti-drone and simulator deals. This pipeline drives revenue, but shrinking the backlog could limit the growth also. Why Zen thriving? Let's look at the industry. The big picture is the India's defense sector is booming and the Zen is at a forefront. India's rupees 6 lakh crore defense budget grow 8% annually with focus on indigenization and anti-drone tech amid border tensions. These simulators and anti-drone systems align with Make in India, serving army and police. What Zen's growth plans like? Let's look at this. The growth diverse. The Q1 financial year 2026, the revenue is 11,111 crores, down 56.27% year on year, and PAT 45.7 crores, EPS 5.31, down from 9.19 year on year. Q4 financial year 2025, the PAT is 101 crores, which is 189% year on year, and revenue is 130%. No dividend declared in Q1 financial year 2026, expanding anti-drone tech with a new R&D. Financial year 2024 revenue is 439 crores and profit is 129 crores. Growth looks solid, but what are the risks? Let's discuss. Q1 financial year 2026, the PAT down due to the lower revenue and margin. This is the biggest risk is here. The competition from the global defense firms and importer alliances. Reliance stock down 25% in 3 months, 47% from peak, which is 2627 in August 2025. Geopolitical risk and tender delay could hurt the earning also. Now let's look at the numbers. So the Zen Technologies has a market capitalization of 12,812 crore. The current price is 1419, which is very near to intrinsic value, which is 1205. तो intrinsic value से थोड़ा सा ज़्यादा है. हाई एंड लो अगर देखा जाए तो जो हाई बनाया था 52 वीक का वो 2628 का था, लो 945 का था, लो से रिकवर करके जो है अभी 1419 के आसपास में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है. स्टॉक का पी जो है 51 है, इंडस्ट्री का पी 70 है, तो इंडस्ट्री के पी से काफी कम में ट्रेड करते हुए हमें देखने को मिल रहा है. प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 7.53 है, इंडस्ट्री की प्राइस टू बुक वैल्यू 9.09 है, तो वहां से भी हमें जो है काफी कम वैल्यूएशन में दिखने को मिल रहा है. ऑल टाइम हाई जो इसने जो बनाया था 22628, वहां से जो है हमें ऑलमोस्ट 46% डाउन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है. ये काफी बेहतरीन डील हो यहाँ पे हो सकती है. यहाँ पे जो है इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छी है, उसके बाद में पैग रेशियो है वो भी काफ़ी बेहतरीन है 0.12 का. कवरेज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 30.5 टाइम्स है, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड. डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम है, 0.05 है. और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है दैट्स इन कंपनी विच इज़ वेरी नियर अलाइन विद अ गवर्नमेंट्स. ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे इसका जो है हम एक चार्ट देख लेते हैं. ये जो चार्ट जो है हमने 3 साल का चार्ट लगाया हुआ है, तो आप ये देख सकते हो कि 3 साल में जो है जो इसकी वैल्यू 80 रुपीज़ की होती थी वो बढ़ के जो है अभी जो है 1419 में है, और इससे पहले जो है वो 2533 के आसपास में गया था. तो एक जो रनअप जो है एक काफ़ी इसमें हो चुका है, और लेकिन अभी जो है वहाँ से काफ़ी कूल डाउन भी ये हो चुका है. अराउंड 46% जो है वो ऑलरेडी डाउन है. वहीं पर ही अगर मैं इसका पी रेशियो देखूँ तो 5 ईयर्स, 3 ईयर्स और 1 ईयर्स तीनों ही टाइम फ्रेम में जो है मुझे ये मीडियन से अपने मीडियन से कम में मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है. वहीं पर ही अगर मैं पेग रेशियो 5 साल
सॉरी प्राइस टू बुक जो है 5 साल, 3 साल और 1 साल में देखूँ तो ये जो है अगेन मीडियन से मुझे डाउन देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी बेहतरीन बात है। ग्रॉस देखा जाए तो कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो डेट फ्री है। कंपनी जो है वो गुड रिटर्न्स वगैरह क्वार्टरली जो है वो बिजनेस जो है वो अच्छा कर रही है। कंपनी जो है हैज़ डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 36.6% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर, विच इज़ फैंटेस्टिक। कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी which is 25.5%. Company median sales is 27.6% for last 10 year, which is absolutely fantastic. तो कौन सी कंपनी जो है वो 7.53 टाइम्स ट्रेड कर रही है अपनी बुक वैल्यू से, जो एक छोटा सा कंसर्न है। कंपनी की जो डेटर्स जो हैं वो 154 डेज के हैं, ये भी एक कंसर्न है। और प्रमोटर की जो होल्डिंग जो है वो भी डिक्रीज हुई है लास्ट 3 सालों में देखा जाए तो 11% से, विच इज़ अगेन अ वन स्मॉल कंसर्न विच इज़ देयर। अगर मैं इसकी जो दूसरी जो कंपनीज के बारे में बात करूं तो इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं या फिर जो पीएस जो हैं वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक्स, गार्डन रिच शिपयार्ड, डाटा पैटर्न, जेन टेक्नोलॉजीज, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, ये सारी हैं। अगर हम इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे जेन टेक्नोलॉजी जो है, यहाँ पे जो है एचएनआई ने जो है वो थोड़ी सी पोजीशन हल्की करी हुई है 0.63। वहीं पर करंट मार्केट टू बुक वैल्यू अगर देखा जाए तो 7.53 है, बेस्ट एज कम्पेयर टू पीयर्स। सेल्स अगर देखा जाए तो 140% CAGR से लास्ट 3 साल का सेल ग्रोथ करा हुआ, विच इज़ फैंटेस्टिक, फैंटाबुलस। ROC और ROE अगर देखा जाए तो 35 और 25 है, जो कि जो है अपने आप में सबसे बेहतरीन है। जितने भी इसकी जो पीयर्स हैं, चाहे वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हों या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हों, उनके जो है आसपास में जो है वो ROC है, लेकिन सबसे बेहतरीन जो है वो इसी का है। वहीं पर ही ROE अगर देखा जाए तो सबसे बेहतरीन यहाँ पे जो है हमें देखने को मिल रहा भारत नहीं, यहाँ पे जो सबसे बेहतरीन जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का है। लेकिन फिर भी जो है 25 जो है काफ़ी रीजनेबली जो गुड है, कंपटीशन से जो है 1-2 पॉइंट ही नीचे है, तो काफ़ी बेहतरीन माना जाएगा। पैग रेशियो है वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, और खुद से भी अगर हम इसके पीयर से कंपेयर करें तो बिल्कुल बेस्ट है 0.12। तो ऑल टाइम हाई से हमें 46% हमें यहाँ पे डाउन भी ये देखने को मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में जो है देयर कैन बी अ गुड शार्प रिकवरी। अब यहीं पर ही जो है अगर हम जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखें तो सबसे मेजर करेक्शन का कारण ये था कि जो 255 का जो बिजनेस इन्होंने करा था लास्ट जून 2024 में, वो घट के जो है वो 158 करोड़ आ गया था। और जो प्रॉफिट जो था वो 79 से घट के जो है 53 करोड़ आ गया था। दैट्स द मेजर रीजन। यहाँ पे जो है वहीं पे ऑपरेटिंग मार्जिन का भी जो है यहाँ पे थोड़ा सा रिडक्शन देखने को मिल रहा है। वहीं पर ही अगर प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें लास्ट 5 साल का अगर हम डेटा देखें तो मार्च 2022 में 70 करोड़ का बिजनेस करते थे, फिर उन्होंने 2023 में 219 करोड़ का बिजनेस करा, मार्च 2024 में 440 करोड़ का, मार्च 2025 में 974 करोड़ का, और अगर 12 ट्रेलिंग मंथ में देखेंगे तो 877 करोड़ का इन्होंने बिजनेस करा हुआ है। वहीं पर ही जो है नेट प्रॉफिट जो है वो 50 करोड़ से जो है वो बढ़ के 130 करोड़, फिर 299 करोड़, और अभी जो है 273 करोड़ है। ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट के जो है काफ़ी पास में है, ऑल टाइम हाई सेल्स के काफ़ी पास में है। बट हमें जो वैल्यूएशन जो इसकी जो मिल रही है वो करीबन करीबन जो है 46% डाउन मिल रही है इसके ऑल टाइम हाई से, तो जो कि काफ़ी अपने आप में बेहतरीन चीज़ है। अगर यहीं पर ही अगर जो है लास्ट 10 साल का अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 29% का हुआ है। प्राइस जो है वो 32% से बढ़ा है, तो प्राइस जो है वो डेफिनेटली काफ़ी बड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम जो है इसका लास्ट 3 ईयर में या 12 ट्रेलिंग मंथ में देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ जो है 141% से हुई है, वहीं पर ही प्राइस जो है मात्र 93% से बढ़ा है। और लास्ट 12 ट्रेलिंग मंथ में 56% से जो ग्रोथ हुई है सेल्स में, लेकिन जो प्राइस में जो है वो शार्पली 25% का करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। ओवरऑल 46% का करेक्शन है, जो कि काफ़ी हेल्दी करेक्शन माना जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 5 साल में 21, 3 साल में 26, और लास्ट ईयर जो है वो 26% के हिसाब से इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। बैलेंस शीट जो है वो इसमें जो है रिजर्व जो है ये कंटिन्यूसली ये इंक्रीज कर रहे हैं। लास्ट ही मार्च 2024 से 25 में देखा जाए तो एग्रेसिवली जो है वो इन्होंने जो है रिजर्व्स वगैरह इंक्रीज करी हैं। 440 करोड़ से सीधा जो है वो 1692 करोड़ 1692 करोड़ हुआ है। बोरिंग जो है वो हल्की सी बड़ी है, 6 से 78 करोड़ का है। CWIP जो है वो कॉन्स्टेंट ही है, इसमें बहुत ज़्यादा जो हमें यहाँ पे डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। कैश फ्लो अगर देखा जाए तो कैश फ्लो CFO बाय पैट जो है इसका कम है, ये नेगेटिव में कुछ शो हो रहा है, तो ये काफ़ी कम है कि ये प्रॉफिट तो दिखा रहा है लेकिन उसको जो है ये कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, जो कि एक छोटा सा कंसर्न यहाँ पे हमें डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद में जो है डेटर डेज जो है वो 153 से 154 हुए हैं। इन्वेंट्री डेज जो है वो कम हुई है, 523 से 118 दिन हुए हैं। डेज पेबल 99 डेज से 25 दिन में हो गया है। कैश कन्वर्सेशन साइकिल जो है 577 दिन का जो था वो 247 डेज का हो गया है। अब इसमें क्या है दोस्तों कि ये ज़्यादातर जो है गवर्नमेंट के साथ में डील करते हैं, तो आपको पता है कि गवर्नमेंट की जो पेमेंट्स होती है वो जनरली जो होती है काफ़ी
डिले इसमें रहता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखें तो जो 2022 में प्रमोटर की जो होल्डिंग जो थी 60% की जो थी, वो घट के जो है अभी 49.05% की हुई है, विच इज़ द ऑल टाइम लो। वहीं पर ये एफआईआई की जो होल्डिंग 0.33 होती थी वो बढ़ के जो है वो 6% के आसपास में हो गई है। डीआईए की होल्डिंग जो 0.1 की होती थी वो बढ़ के जो है वो 8.75 हो गई है। एफआईआई और डीआईए जो है वो भर भर के ले रहे हैं और काफ़ी अच्छी जो है उन्होंने पोजीशन यहाँ पे होल्ड करी है। वहीं पर ही पब्लिक जो 39% के आसपास जो होल्ड करती थी वो घट के जो है अभी जो है 35.72% के आसपास में जो है वो पब्लिक की होल्डिंग आ गई है, जो कि एक नेगेटिव, जो कि जो है काफ़ी पॉजिटिव देखा जाएगा। एफआईआई और डीआईए की जो हाईएस्ट जो होल्डिंग जो यहाँ पे जो देखने को मिल रही है वो 8.29 की थी। 8.29 जो है वो दिसंबर 2024 में था। वहाँ से जो है कुछ जो है एफआईआई ने पोजीशन अपनी घटाई है 5.95, उसके बाद में फिर थोड़ी सी बढ़ाई है, तो घटना बढ़ना चल रहा है। यहाँ पे डीआईआई ने जो है वहीं जो है 8.97 का जो है वो हाईएस्ट इन्होंने होल्डिंग करी थी दिसंबर 2024 में, जो कि बढ़ के 9.47 हुई है। अभी यहाँ से थोड़ा सा घट के 8.75 के आसपास में हुआ है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म के लिए तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे जो है हमें देखने को मिल रहा है। कंपनीज की जो है एनुअल रिपोर्ट, क्रेडिट रेटिंग्स एंड कॉन कॉल को आप डेफिनेटली गो थ्रू करेगा। ये जो है आपकी कन्विक्शन को जो है बिल्डअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द टेक्निकल एनालिसिस। तो दोस्तों ये जो है मैंने डेली चार्ट फ्रेम का जो है जेन टेक्नोलॉजी का जो है मैंने चार्ट खोला हुआ है। आप देखो दोस्तों, यहाँ से जो है ये एक लंबा इसने ब्रेकआउट देने के बाद में यहाँ से जो है एक लंबी मूवमेंट करी है। यहाँ पे जो है इसने 2612 का जो हाई बनाया है, वहाँ से जो है ये काफ़ी ज़्यादा ये टूट गया था, 977 के आसपास में टूटा है। वहाँ से टूटने के बाद में ये जो है फिर ये ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद में ये जो इसका जो यहाँ पे जो पॉइंट था वहीं पर ही इस पॉइंट में बनाने के बाद में इसने जो है ये नीचे आया है। नीचे से फिर जो एक अच्छी करेक्शन हुई है यहाँ पे, बिल्कुल जो इसका जो बेस जो बनाया है उस बेस के पास में है। यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से ऊपर की मूवमेंट ये फिर से चालू कर सकता है। यहाँ पे एक हमें जो है लॉन्ग टर्म पे जो है हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो इसका अगर हम टारगेट देखें तो अभी जो है ये 1419 के आसपास में है। तो 1419 से जो है अगर हम इसका जो है टारगेट जो है 3750 के आसपास में देखें तो 165% का जो है 165-166% के आसपास का जो है इसका टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 3700 के आसपास का जो है ये इसका टारगेट रहेगा। लॉन्ग टर्म टारगेट है, 3 से 5 साल के जो है अगर आप व्यू रख के चलेंगे तो डेफिनेटली जो है हम इस टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिस तरीके से मैंने वीडियो बनाई है उस तरीके से जो है आप देखिए कि कैसे हम साथ में एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ को भी जो है मेरी वीडियोस को रेफर करिए। आप शेयर लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपके कोई फीडबैक वगैरह हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो वो डेफिनेटली जो है आप जो है कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं जो है सारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको डेफिनेटली मैं रिवर्ट करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीक जो है फिर नई वीडियो के साथ में मुलाकात करेंगे। आजकल जो है कभी कभार काफ़ी वीक स्किप भी हो जाते हैं। इस बार जो है मैं ये थर्ड वीक में वीडियो बना पा रहा हूँ, तो कुछ थोड़ा सा जो है अदर प्रायोरिटीज़ को भी जो है वो मैनेज करना पड़ता है, तो कभी डिले हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है फिर आपसे जो है पॉसिबली नेक्स्ट या नेक्स्ट वीक में जो है फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जो है आई एम साइनिंग ऑफ। टेक केयर, enjoy, and happy Deepavali to all of you in advance. Take care, bye bye. I'm signing off. This side Manthapa.